वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही आत्मा को शांति और मन को भक्ति का एहसास होने लगता है। और उसी पवित्र धरती पर बसा है इस्कॉन टेम्पल, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हर सुबह और शाम गूंजती है हरे कृष्ण की महाधुन, जो मन को इतना सुकून देती है कि जैसे सारी दुनिया थम सी जाती है। इस मंदिर की भव्यता, इसकी दिव्यता और सबसे बढ़कर यहाँ की भक्ति से भरी हुई अनुभूति हर श्रद्धालु को कृष्ण के और करीब ले जाती है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं वृंदावन के उस मंदिर की सैर पर, जहां भक्ति सिर्फ भावना नहीं, जीवन शैली बन जाती है। मैं इसमें इस्कॉन मंदिर में और हमारे साथ राधे कृष्ण भक्ति के एक फॉरेन कंट्री की महिला है जिससे हम जानेंगे। What about her? What about her? My name is Vishaka Saki, and I was born and raised in ISKCON. My parents were already in Hare Krishna movement. Back in those days, they were in the KGB USSR. At that time, we were not allowed even to have a religion. Only communism, no religion. So my parents became Hare Krishnas, and I was already born in there. And from childhood, I was dreaming to come to be in Vrindavan. So here is my dream. I'm here. I'm serving at the temple, taking care of the lordships. We're doing all the services. You see the shingar. We do take care of the jewelries, the dresses, and the many foreigners are here. We leave everything behind. We leave all our families. I left college to be here. I was a young girl, and Prabhupada gave us a very good life. Very good life. Very good life. Maybe you thinking good life mean money and prestige. For me, good life means that I'm connected to God. Connect to God. Yeah. For us, Krishna Balaram. Srila Prabhupada went from Vrindavan to Bidesh. So he knew that Indians like Bidesh so much. So he knew that if he make Bideshis Hare Krishnas, maybe Indians will be attracted too. You like too much. Yeah, because see, India look after the West, but the Westerners look after the India. You can see how popular spirituality is. But spirituality doesn't mean, oh, I love God, God loves me. It means you have to serve the God. You have to learn how to love Him. So in any religion, Srila Prabhupada would say, I'm not trying to convert you into Hare Krishna, I'm trying to tell you, love God, Krishna. So for us Westerners, we already have everything. We have a good life in there, but it's empty. Kuch nahi hai. Kuch nahi hai. The best taste when you feel happy, it's when you serve Krishna. Krishna. One more question again. How much do you like Indian culture? Indian culture is a Vedic culture. It's a topmost culture. If you know that I'm from Armenia, Yeah. my culture is exactly same like Indian culture. Exactly same. Exactly. Again, I happy to say my culture and my your dresses. And my culture too, because it is our culture. Our culture. Our, yeah. Culture. This is the dress. Your dress. Yes. And other countries' dresses are like. Look, you dress like a Bideshi, I look like a Dreshi. I'm proud to you. I always tell everyone, you say I'm an Indian, I'm a Hindu, I'm Indian. Where is your dhoti kurta? Huh? Modern. So, I'm a Bideshi, I'm dressed in my nice sari. Where is your dhoti kurta?
That's why I'm like, Huh? that's why I'm proud. That's Yeah. why I'm proud. Thank you. Thank Yeah, you. yeah. I want to tell you one more time. ISKCON is because Srila Prabhupada, a grandfather, 65-year-old, left his family, left his business, became a sadhu, became a sannyasi, came to Vrindavan, and from Vrindavan he took Krishna to the Western world. One person. Nobody did it. No. We all are here in International Society for Krishna Consciousness. International. Yeah, yes, sir. Because Srila Prabhupada felt very compassionate towards his fellow Indians. I for Indians and I for international. For India, Your culture been so degraded since then. the whole world, the whole world. British didn't wanted you to keep the culture. They wanted you to become Bideshis. Why? I'll tell you one thing. If you see Hasidic Jews, they wear their curls and a big hat anywhere. Why do they not change? So I have to. Why are the Muslims wearing their attire? Because they are proud of their culture. Why Indians change? Because we are still not sure about our identity. So I ask everyone to listen to Srila Prabhupada and accept your identity of a most beautiful culture, because you come from the lineage of Lord Chaitanya Mahaprabhu. You come from Krishna. You come from Ramachandra. You don't come from the West. I hope the youth will hear that. I hope the youth. Really, you got to pray to. You connected to. इस्कॉन मंदिर वृंदावन में हूँ और हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के मीडिया पीआर जो देखते हैं रवि लोचन जी। हम जानेंगे कि रवि लोचन जी जो यहाँ पे जो कर रहे हैं, व्यवस्था में जो कर रहे हैं, ये कितने सालों से चल रहा है और क्या क्या पद्धति है, हम बताएंगे आपको। जी आपका बहुत बहुत ईश्वर वाणी टीवी पे स्वागत है। हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रभु ये जो चल रहा है इस्कॉन मंदिर, यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर ही जो है रहते हैं। ये संस्था कब से चल रही है और कैसे इसका जो उपार्जन है जो चल रहा है, कैसे देख रेख में चल रहा है? देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया कि ज़्यादातर फॉरेनर ही रहते हैं, जी ऐसा नहीं है। सभी के लिए अलाउ है। जी किसी को आने के लिए मना नहीं, जाने के लिए मना नहीं। भक्ति में सभी आ सकते हैं। जी हाँ, ये एक स्पेशल हमारा जो प्रभुपाद इस्कॉन का फाउंडर है, जी उन्होंने विदेश के जो कि आज विदेश में ये गीता वाणी को प्रचार करके उन लोग को लेके आए यहाँ इंडिया में, हाँ जो कि आज सारे विदेशी भी हमारा भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, राम को पूजा करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा विदेशी साथ में है, इसलिए कहा जा रहा है जब विदेशी साथ में रहे, विदेशी जात रहे, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए अलाउ है। आज देखिए 50 साल हो गया इस्कॉन चल रहा है, जी जो कि इस्कॉन प्रभुपाद जो हमारा फाउंडेशन है, उनके गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो उनका गुरुजी का आदेश था कि तुमको विदेश जाके प्रचार करना है और इन लोग को उद्धार करना है, क्योंकि उनका हमारा इंडियन कल्चर कुछ नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, उनका कल्चर अलग था। हाँ, कि एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, पिता बाप बेटा का रिश्ता क्या होता है, ये सब हमारा जो धार्मिक ग्रंथ से ही सीख सकते हैं। जी तो इसी गीता जो भागवत रामचंद्र रामायण हो, ये सारे को जाए लेके प्रभुपाद आज विदेश पहुँचे। आज विदेश में प्रचार हुआ है, जो कि देखिए इतनी मात्रा में, बहुत मात्रा में लोग आज यहाँ इंडिया आ रहे हैं और सारे विश्व में मतलब लगभग 200 देशों में हमारा इस्कॉन की मंदिर हुआ है। कहीं ना कहीं जो है आज गीता का छाप, जो हमारे भगवत कथा का जो छाप है, वो आपके संस्था के माध्यम से मुझे लग रहा है ग्लोबली जो है हो रहा है। और इससे अभी कितने कंट्री आपसे जुड़ चुके हैं और कितने लोगों का आवागमन जो है लगातार आपके इसमें होते रहता है? अब तो अभी तो कहा आपको मैंने 200 कंट्री कम से कम हमारा कवर कर चुके हैं। हर कंट्री में कम से कम ये भगवान कृष्ण की मंदिर, प्रसाद और रहना का सब व्यवस्था चल पा रहा है। जो कि कई अब मैं देखा हूँ हमारा भारतीय लोग जाते हैं तो विदेश में जब बोलते कम से कम जाके इस्कॉन में शुद्ध प्रसाद खाने को मिलता है विदेश में, ये बड़ा खुशी की बात है। बाकी प्रभुपाद जी जो संस्था को बनाया आज,
सभी की जगत मंगल के लिए बनाया गया है। हाँ। लेकिन रवि जी, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि इस भक्ति में जो कृष्ण की जो भक्ति है एक अलग रूप देती है, अरे एक अलग जो है भक्ति मार्ग सिखाती है, इसमें महिलाओं का बड़ा मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, और जब कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो बड़ी मतलब रम से जाते हैं, ऐसा क्या होता है रवि जी की तरफ से, ऐसा क्या होता है जो एकदम बिल्कुल भक्ति विभोर हो जाता है? देखिए, हमारा प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। जी जो इस्कॉन का फाउंडर जी प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे। तभी तो आज इतने कम समय, मतलब इस पूरा स्टोरी यदि आपको मैं कहने जाऊं, जी देखिए प्रभुपाद एक 70 साल उम्र में 70 ईयर्स ओल्ड जब वो थे, तब अमेरिका गए 1965 में। अमेरिका गए प्रचार करने, गुरु जी का इच्छा पूरी करने के लिए। तो वहाँ देखिए किसी को जानते नहीं, जाके एक पार्क में बैठे, और क्या रहा ना, जब गए यहाँ से इंडिया एक कार्गो में गए, पैसा नहीं था उनके पास, किसी बॉम्बे सेठ ने कार्गो में सीट बनवा दिया, तब गए, 1 महीना लगा अमेरिका पहुंच। वहाँ जाके किसी को जानते नहीं, एक पार्क में बैठे के लिए कीर्तन किए, फिर धीरे धीरे विदेश आने लगे, उनको कृष्ण कथा कहने लगे, तब फिर धीरे धीरे हिप्पी वालों को हैप्पी बना दिए, जो हैप्पी वाले हैं, जो हिप्पी वालों को हैप्पी बना दिए, जो कि आज करोड़ों में अनलिमिटेड अनकाउंटेबल, जो कि पूरा विदेशी इंडियन सारे भक्त आज मिलके गेट टुगेदर एक, आप देखिए इसको ऐसा संस्था है, पूरा वर्ल्ड वाइड देखेंगे यहाँ मिलेंगे, और इंडिया का भी सारे स्टेट का भी यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही गेट टुगेदर ये एक संस्था है। हाँ, और जो ये जो आप बोला जो लेडीज लोग यहाँ रमते, खाली लेडीज नहीं, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी ये हरि नाम में लगे रहते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपके जो परिसर है उसमें एक पेड़ है, उसकी क्या कथा है? ऐसा कुछ खाता नहीं है, प्रभुपाद जी ने लगा के गया है कि पेड़ जो जिसको बोलते हैं तमाल ट्री, तमाल स्वयं कृष्ण का रूप होता है, अवतार होता है, इसलिए यहाँ के लगाया गया पेड़ है, जो प्रॉपर लगाए गए थे वो है। अब उसको काटें क्यों रखे, इसलिए पड़ा है। ऐसा बड़ा भाव विभोर करता है, बड़ा अच्छा लगता है, भाव विभोर करता है, सो अच्छा लगता है। साधारण ट्री और तमाल ट्री है, तमाल तमल ट्री, हाँ, तमाल वृक्ष बोलते हैं, जो कि कृष्ण का अवतार है माना जाता है। तो हमारे साथ रवि जी थे, इन्होंने बताया कि इस्कॉन में कैसे कैसे यहाँ पे धर्म कैसे जुड़े, कहाँ से शुरू हुआ, आज हमने सब कुछ इस ईश्वर वाणी पे भक्तों के लिए इन्होंने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए ईश्वर वाणी, हम दिखाते रहते हैं आपको कृष्ण भक्ति की लीला। मैं संजीव चौहान, वृंदावन से, धन्यवाद। ओके। जी प्रभु।